بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سن سکو تو سنو میں خوش آمدید ناول لے کر آئے ہیں جو رکے تو کوہ گراں تھے ہم، قسط نمبر 35 کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ آنے والی تمام اقساط آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ ناول کیسا لگ رہا ہے اس بارے میں ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہوتی رہے۔ شکریہ۔ وہ کمرہ جو دیوار میں جڑی ایک الماری، باندھ کی ایک چرپائی، اس چرپائی پر بچھے سردی گرمی کے موسم کے حساب سے بستر، لکڑی کی سیٹ والی ایک سخت کرسی اور دیواروں پر تنکوں میں جڑے ایک آئینے کے علاوہ اپنے اندر کوئی سامان نہیں رکھتا تھا۔ اس روز ہی وہی کمرہ، تازہ پالش شدہ پرانے ڈبل بیڈ، ڈبل بنک کمبل، 2 سیٹوں والے چھوٹے صوفے اور ایک عدد سنگار میز سے سجا تھا۔ بیڈ کے چاروں طرف تازہ پھولوں کی لڑیاں لٹک رہی تھیں اور کمرے کے ماحول میں مہندی، خوشبو اور پھولوں کی بانس رچی تھی۔ کھاری نے کمرے میں داخل ہونے کے بعد بے چینی سے ادھر ادھر دیکھا۔ یہ اس کا کمرہ نہیں تھا، یہ وہ ماحول نہیں تھا جس سے وہ مانوس تھا۔ وہ سادہ مزاج، سادہ لوح انسان تھا۔ ایک عرصہ فارم ہاؤس میں گزارنے کے باوجود اسے وہاں کی قیمتی چیزوں میں کبھی دلچسپی محسوس نہیں ہوئی تھی۔ اس نے ہوش سنبھالتے ہی وہاں کے سجے سجائے قیمتی سامان سے لیس کمرے دیکھے تھے جو کبھی کبھار تو یوں خالی رہتے تھے، کوئی دیکھنے والی دوسری آنکھ موجود نہ ہوتی۔ وہ چاہتا تو قیمتی اور پرتعیش سامان سے مزین ان کمروں میں لوٹے لگاتا پھرتا، کچن میں موجود نفیس اور قیمتی کراکری اپنے استعمال میں لے آتا، فارم ہاؤس کی پینٹری میں موجود اشیاء خورد و نوش کو خورد برد کر لیتا، مگر اس کی طبیعت پیدائشی طور پر سیر تھی۔ وہ ایسے آسائشوں میں دلچسپی ہی نہیں جو اس نے کبھی نظر تک اٹھا کر ان چیزوں کو نہیں دیکھا تھا۔ کھاری سب چیزوں سے بے نیاز دن سے رات کرتا رہتا۔ وہ اپنی ایسی ہی زندگی میں خوش تھا اور مطمئن بھی، مگر اب جو ان سوچی انچاہی صورتحال اس پر آن پڑی تھی، اس نے اسے ہلا کر رکھ دیا تھا۔ شادی۔ اس نے پھولوں کی لڑی سے سجے بیڈ اور بیڈ پر دھرے سرخ ملبوس میں سجے وجود کو دیکھا جس کا ابھی دور دور تک اس نے تصور کیا تھا، نہ اس کے بارے میں کبھی کسی دوسرے نے اس سے ذکر کیا تھا۔ وہ تو ابھی تک خود کو آپا رابعہ کا چھوٹا سا طالب علم ہی سمجھ رہا تھا کہ اس پر وہ رشتہ مسلط کر دیا گیا جس کی علی بے پہ تک اسے پتہ نہ اندازہ۔ سعدیہ کلثوم جو ہمیشہ اسے چڑھایا کرتی تھی، جس کو اس نے کہا تھا گاؤں کے راستے پر موجود سانپ جب 100 سال کے بعد انسان بن جائے گا تو اس کی شادی سعدیہ کلثوم سے کرا دی جائے گی، وہ اسی سعدیہ کلثوم کا مجازی خدا بن چکا تھا۔ اسے سعدیہ کلثوم کو بطور اپنی بیوی کے مخاطب کرنا تھا۔ اسے کیا کہنا تھا؟ وہ خشک ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے سوچ رہا تھا۔ اس کی زبان شاید لکنت کھا گئی تھی۔ اسے اپنے حلق میں ایک پھندا سا اٹکا محسوس ہو رہا تھا۔ چودھری صاحب کے پاس اس اعلان کے بعد اب کہ سعدیہ سے اس کا نکاح کیا جائے گا، ایک ہی مثبت بات اس کے ذہن میں آئی تھی، اور وہ یہ تھی کہ چودھری صاحب کی منت سماجت کر کے سعدیہ کو ڈاکٹر بنانے کا خرچہ اٹھانے پر منا لے گا، اور اس کے دل کو اس پورے قصے کو دہراتے ہوئے صرف اس بات کا اطمینان تھا اور خوشی بھی۔ سعدیہ باؤ۔ پھر اپنی جگہ سے 1 انچ بھی آگے بڑھے بغیر اس نے بمشکل خود کو بولنے پر مجبور کرتے ہوئے کہا، میں ان پڑھ جاہل بندہ ہوں، مجھے نہیں پتہ کہ آپ کے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی ہے، مجھے معاف کر دینا، میں ایسی زیادتی کا حقدار نہیں بننا چاہتا تھا۔ کوئی زیادتی نہیں ہوئی ہے میرے ساتھ کھاری۔ جواب میں دلہن نے گھونگھٹ کا تکلف ہٹاتے ہوئے اس کی طرف دیکھا۔ پورے ہار سنگھار کے ساتھ گہنے اور اچھے کپڑے لتے پہنے وہ سعدیہ تو کہیں سے بھی نہیں لگ رہی تھی جسے کھاری اب تک دیکھتا آیا تھا۔ وہ دم بخود اسے دیکھتا چلا گیا۔ میری شادی کسی کے ساتھ تو کرنی ہی تھی نا؟ آپا رابعہ اور مولوی صاحب نے وہ دانت پیستے ہوئے بولی، میں خوش ہوں کہ کسی بے ایمان، خود غرض، منافق اور ریاکار بندے کے بجائے میری شادی تم سے ہو گئی۔ میں تمہارے ساتھ بہت خوش رہوں گی کھاری۔ اور نہیں جی،
خاری نے اس کے چہرے سے بمشکل نظریں ہٹاتے ہوئے کہا۔ ملکیت اور دسترس کے احساس سے اس کے ہاتھ پاؤں کانپنے لگے تھے، مگر وہ اس احساس سے نظر چرانا چاہ رہا تھا۔ مجھ مسکین سے عاجز بندے کے ساتھ آپ نے کبھی خوش نہیں رہنا۔ بس پڑھائی کرتی جاؤ۔ میں نے چودھری صاحب کو منا لیا ہے، وہ آپ کو ڈاکٹری تک پڑھائیں گے۔ اور تم کیا کرو گے؟ سعدیہ اس خبر پر آتا غصہ دباتے ہوئے بولی۔ میں جی، اس نے سر جھکا کر نظریں ادھر ادھر گھماتے ہوئے کہا، سوچ رہا تھا کہ اپنا کیا بندوبست کرے۔ اس نے پھر ایک خیال آتے ہی تیزی سے بولا، میں آپ کا چوکیدارا کروں گا، آپ کو پر اچھی بری نظروں سے بچاؤں گا، آپ کی حفاظت کروں گا، پہرا دوں گا، پورا۔ نہیں بننا مجھے ڈاکٹر اور نہیں کرنی مجھے پڑھائی۔ وہ فلمی انداز میں بیڈ سے اتر کر کھڑے ہوتے ہوئے بولی، ہم ایک چھوٹا سا گھر بنائیں گے، اس گھر کو سامان سے سجائیں گے، جس میں تم اور ہمارے بچے ہنسی خوشی رہیں گے۔ وہ کھاری کے قریب آ کر کھڑے ہوتے ہوئے بولی، بچے؟ کھاری نے بوکھلا کر اسے دیکھا۔ سعدیہ کے چلنے اور سر ہلانے سے اس کے زیور پر ایک ہلکی سی آواز پیدا کر رہے تھے۔ اس کے وجود سے پرفیوم کی خوشبو آ رہی تھی۔ اس کے سوج جوڑے پر سجے تلے اور زرد دوزی کے تار کمرے میں روشن ٹیوب لائٹ کی روشنی سے منعکس ہوتے آنکھوں کو خیرہ کر رہے تھے۔ سعدیہ خوشی کے ایک جہان کی صورت کھاری کے سامنے کھڑی تھی۔ شاید اس جہان کو سمجھنے کے لیے کھاری کو کسی لغت کے صفحات الٹنے اور پلٹنے کی ضرورت نہیں تھی۔ اس کے ذہن اور دل پر کئی دن سے چھایا غبار جیسے چھٹتا کمرے میں آتی جاتی نامانوس ہوا کے ساتھ مدغم ہو کر غائب ہو رہا تھا۔ اسے ایک دم احساس ہونے لگا کہ وہ مدرسے اور مکتب میں پڑھتا ایک کم عمر بچہ نہیں رہا، وہ بڑا ہو چکا تھا۔ وہ اس اجنبی جگہ پر کسی سے واقف نہیں تھیں۔ فارم ہاؤس کی وہ ملازمائیں جو ان کے کمرے میں آتی ان سے کسی ضرورت کا پوچھتیں، ان کے لیے بالکل اجنبی تھیں۔ سعدیہ کی رخصتی سے لے کر اس رات گئے تک وہ اس کمرے میں تنہا بیٹھی رہی تھیں۔ مولوی سراج کی ان دنوں 5 انگلیاں گھی میں ڈوبی ہوئی تھیں۔ چودھری صاحب اور ان کے ملازم انہیں غیر معمولی عزت اور احترام دے رہے تھے۔ وہ تو شاید اپنے حواسوں میں بھی نہیں رہے تھے۔ سعدیہ کو اس کمرے سے رخصت کرنے کے لیے 2 گھڑی اندر آئے اور 2 انگلیاں اس کے سر پر رکھ کر بغیر کچھ بولے ایک طرف ہٹ گئے تھے۔ اس کے بعد سے اب تک آپا رابعہ نے ان کی شکل نہیں دیکھی تھی۔ وہ اس کمرے میں تنہا بیٹھی تھیں اور انہیں ایسا لگ رہا تھا جیسے ان کا دماغ بالکل خالی تھا۔ اس سے نہ کچھ سوچا جا رہا تھا، نہ ان کی سمجھ میں ان کا ساتھ دے رہی تھی۔ حالات نے ایک دم پلٹا کھایا تھا۔ انہیں لگ رہا تھا سعدیہ نے دنوں دن عمر کی کئی منزلیں طے کرتے ہوئے انہیں ہڑبڑا کر مستی کی نیند سے جگایا تھا۔ عمر بھر سعدیہ کو ڈاکٹر بنانے کے خواب دیکھنے والی آپا رابعہ نے اسے دلہن بنا کر کسی کے بھی ساتھ رخصت کر دینے کے خیال تک کا سفر صرف چند ہی دنوں میں مکمل کر لیا تھا۔ وہ یہ سفر پوری دنیا کا چکر لگاتے ہوئے درپیش آتے سفر کے برابر تھا۔ انہیں خیال آیا تھا 7 دن میں دنیا کا سفر۔ انہیں عرصہ پہلے دیکھی کتاب کا سر وقت یاد آ گیا۔ جو بھی ہوا اس کے لیے اسباب اللہ نے خود پیدا کیے، بندے نے خود بھی بھلا کبھی اپنی تقدیر کی تدبیر کی ہے۔ سعدیہ والے قصے پر وہ مولوی سراج کے فرمان زنی پر یقین کرتے ہوئے خاک ڈالنے کا ارادہ کر چکی ہیں، مگر اس رات ان کے ذہن کو خالی اور جامد کر دینے والی سوچ کچھ اور تھی۔ کس سے پوچھوں؟ وہ کون ہے؟ کہاں سے آیا ہے؟ چودھری صاحب اور فارم ہاؤس سے اس کا کیا تعلق ہے؟ لاتعداد مرتبہ خود سے یہ سوال کر چکی تھیں، مگر اس سوال کا جواب انہیں کون دیتا؟ میرے خدایا، میں کیسے ذہن سے اس خیال کو جھٹک دوں؟ کئی گھنٹے یوں ہی بے خیالی میں بیٹھے سامنے موجود دیوار کو گھورتے رہنے کے بعد سر جھٹک کر اپنا چہرہ دوسری طرف کرتے ہوئے انہوں نے سوچا، ہو بہو وہی شکل، وہی چہرہ مورا، ویسا ہی قد کاٹ، ایسی ہی آن بان، فرق تو صرف عمر کا ہے اور اس کے سوا کچھ بھی نہیں۔ کیا یہ اتفاق ہے محض؟ کیا دنیا میں ایک سے 2 چہرے واقعی ہوتے ہیں یا جنیاتی عمل کا کرشمہ ہے؟ ہائے میرے اللہ!
फिर उन्होंने सर उठाकर ऊपर देखते हुए सोचा, किससे पूछूं, किसके ज़रिए इस तक पहुंचूं, किससे पूछ लूं। पता नहीं वो यहीं है या कहीं चला गया। एक नया ख्याल इनके दिल को बेचैन करने लगा। क्या खबर वो यहाँ सिर्फ एक रात का मेहमान हो। मेहमान है या था, किसका मेहमान था। क्या चौधरी साहब का कोई रिश्तेदार है या चौधरानी का अजीज़। नहीं। फिर उन्होंने पूरी यकीन अंदाज में सर को नफ़ी में जुम्बिश देते हुए सोचा, इन दोनों से इसका कोई खून का रिश्ता हो ही नहीं सकता। इनके ख्याल में यकीन था इसकी उम्र भी ऐसी नहीं कि इसे चौधरी साहब का दोस्त समझा जाए, लेकिन किस दोस्त का बेटा तो हो सकता है। इनसे एक ख्याल सूझा, ना ना, अल्लाह ना करे वो चौधरी साहब के किसी दोस्त का बेटा हो। फिर न जाने क्यों इनके दिल ने सख्ती से पुकारा, जो भी है, जहाँ से भी आया है, इसकी बाबत किससे पूछूं, किसके पास जाऊं और कहूं कि मुझे 2 घड़ी के लिए इसके पास ले जाए। अनगिनत ख्याल, लातादाद सोचें इनके जहन को जकड़े जा रही थी। वो एक उलझन से निकल कर नई उलझन में पड़ गई थी। तुम बड़ी बेसब्री हो, कोशिश करो सब्र और हौसले की आदत तबीयत में पैदा हो जाए। तुम देखना सब्र और हौसले के जवाब में क्या क्या मौजज़े रोनुमा होते हैं। जिस चीज़ के लिए बेसब्री और बेकरारी महसूस हो रही होती है, वो आप अपने कदमों पर चलती तुम तक पहुंच जाएगी। फिर एक पुरानी बात याद आई, और जो तुम मेरी जगह होती तो क्या इस चेहरे के यूँ नज़र आ जाने पर सब्र करती और हौसले से काम लेती, बेसब्री और बेकरारी से बच पाती। उन्होंने तस्वुर में आती किसी शबी को मुखातिब करते हुए कहा, न जाने अब ये खारी और सादिया क्या बनाते हैं। शुमाल और जनूब के ताने बाने मिलाने की कोशिश तो की है, देखो रस्सी गुंथती है या ताना बाना टूटता है। उन्होंने खुद को मुज़म्मिल किस हालत से निकालने की खातिर ध्यान किसी दूसरी सोच की तरफ लगाया। खारी इनके जहन में जैसे जमाका हुआ। लो, मैं ख्वाह मख्वाह बेचैन हुई, खारी से खबर लगवाती हूँ इसकी। इनके दिल को कुछ चैन नसीब होने लगा। ले, इतने मेहमान तो तूने आंसू बहा बहा कर दिमाग का पानी कर दिया, और आज तेरे दांत अंदर ही नहीं जा रहे। मासी जन्नत ने खारी के सर पर चपत रसीद करते हुए कहा, बस देख ले मासी। इसने पीतल के मुनक्कश गिलास से लस्सी का आखिरी घूंट पीकर हलक से उतारते हुए कहा, तू सिर्फ नाम की जन्नत है ना, मुझे तो मन लेके वैसे ही जन्नत मिल गई। हाय हाय, मासी ने मसनूई हैरत से खारी की तरफ देखते हुए कहा, तू तो कहता था इल्ज़ाम लगाया है भाई मालिक ने, अब कैसी दंदा निकल रही हैं। इल्ज़ाम ही था, वो इल्ज़ाम था। खारी ने कंधे पर रखे रुमाल से मुंह पोंछते हुए कहा, चाचे मालिक ने मैंने बेइज्जत करने की कोशिश की थी, पर इसने ऊपर देखते हुए कहा, मेरे मौला ने मेरी इज्जत रख ली। अल्लाह के सारे काम निराले हैं। जब ही तो इल्ज़ाम ही था, जब ही तुम इतने खुश नज़र आ रहे हो, सवेरे सवेरे संवर कर इधर आए हो। बड़ी खुश की हुई हैं, साफ़ सुथरे कपड़े भी पहने हुए हैं, लगता है शादी रास आ गई। खारी को यकीन करीब से एक बूढ़ी औरत बोली, 16 आने सच्ची बात है मासी। खारी पुरजोश अंदाज में बूढ़ी औरत के शाने दबाते हुए बोला, देख तो बहन जन्नत, अपना खारी एकदम जवान जवान सा लगने लगा। मास्टर कमाल ने मजाकन कहा, मैंने जवान कहोगे मास्टर जी, तो इसका मतलब ये होगा कि तुसी बुढ़े हो गए हो। खारी ने दांत निकाले, देखो इसकी आज दंदियाँ कितनी निकल रही हैं। मासी जनरल नाराज़ी से बोली, इतने दिन मुझे भी अपने साथ रुला मारा। बस मासी, बंदे नू आंदे वेले वह कुछ पता नहीं होता, एवं पहले ही रोने को लाने लग जाता है। खारी ने फलसफियाना अंदाज में कहा, चल बड़ी बात है खारी पुत्र, तुझे शादी रास आ गई है, हमारे लिए इतना ही काफ़ी है। मास्टर कमाल ने सर हिलाते हुए कहा, ले ये लस्सी का जग और गिलास ट्रे में रख और अपनी वोटी के लिए ले जा। रेहान खान ने पेट खाली बैठी होगी अंदर। मासी जन्नत ने खारी से कहा, वो लस्सी नहीं पीती है, वो चाय पीती है। खारी ने कहा,
किचन में मौजूद सब लोग हंस दिए। वाह भाई वाह, एक ही रात में तुझे ये भी पता चल गया। मासी जन्नत ने नाक पर उंगली रखते हुए कहा। ले ले, पहले नहीं था जानदा मौलवी साहब के घर। मैंने उधर पता है उस वक्त का से। खारी ने अपनी सफाई पेश की। आहा, मासी जन्नत ने दोनों लफ्ज़ों को खींचते हुए मुंह से आवाज़ निकाली। पहले की गल है। वो हंसकर बोली। वे झल्लिया, तू क्यों फिर इसे यहाँ लाकर पानी पिला पर आकर ही फिराता रहा? चाय पिलानी थी ना। इसने खारी के बाजू पर थप्पड़ मारा। आहो, खारी को वही दिन याद आया जब फार्म हाउस से बाहर निकलते हुए पानी के नल पर सादिया ने पानी पिया था, और दूसरी बार भी वो प्यास की वजह से ही इधर आई थी। मासी, तुझे पुरानी गल्ला बड़ी याद हैं। वो खिसिया कर बोला। ओ खारी, बाहर से किसी ने पुकारा। तेरा जापानी यार तुझे ढूंढता फिर रहा है, इसे भी पूछ ले। ओए होए, खारी ने सर पर चपत मारते हुए कहा। लो, मैं उसे भूल ही गया। वह अपने नए कपड़े आदतन झाड़ता हुआ बाहर को चल दिया। मासी जन्नत, खीर के लिए जो दूध अलग हुआ था वो दे दो। बाहर से किसी ने आकर मासी जन्नत से कहा, और फिर सब अपने अपने काम में मशगूल हो गए। आज मैं खारी की दुल्हन का मेकअप खुद करूंगी, मानू ने अपने जहन पर पड़े एक अनजाने से बोझ को झटकने की खातिर ऐलान किया। कल तो किसी ने इसे ऐसा कार्टून बना रखा था कि बेचारी के असल नक्श और निगाह छुप ही गए थे। तो और क्या, हमें तो पता ही ना चला वो टिसोनी है कि कोजी। ताई सावरा ने मुंह पर कपड़ा रख कर हंसते हुए कहा। नहीं खैर, प्यारी तो है वो, महानूर ने बेख्तियार कहा। इसकी अम्मा तो बहुत डिसेंट और प्यारी सी खातून है, इन्हीं जैसी लगती है। हाँ, जब ही तो अम्मा का दिमाग 7वें आसमान पर चढ़ा हुआ है। तुम्हारे चाचे ने मुझे महफिल करा के इससे दर्स दिलवाने से मना ही कर दिया, वरना मैं देखती कैसे इस दफ़ा इनकार करती। ताई साबरा की आपा राबिया से बेवजह की खलिश उछली। यकीनन बहुत अच्छा सबक देती होंगी, बहुत सुलझी हुई गुफ्तगू करती हैं। ऐसा लगता है जैसे वो बिल्कुल आउट ऑफ प्लेस और मिसफिट हैं इस माहौल में। बस जिससे इनका ताल्लुक़ है। महानूर ने बालों में ब्रश फेरते हुए आईने में खुद को देखा और ताई साबरा से मुखातिब हुई। क्या हैं? ताई साबरा के कुछ पल्ले ना पड़ा। कुछ नहीं, महानूर ने हेयर बैंड को दांत से खोलते हुए सर हिलाया। मैं चली खारी की दुल्हन सजाने। हाँ, सेट करने के बाद एक बार फिर खुद को आईने में देखते हुए महानूर ने ताई साबरा की तरफ देखा। चलो रज़िया, मेरी ये सारी एसेसरीज उठाओ और मेरे साथ चलो। मुझे याद नहीं रहता खारी का कमरा किस तरफ है। इसने मुंह सुजाकर एक तरफ खड़ी रज़िया से कहा। जो नौकरी की मजबूरी ना होती तो मैं कभी ना जाती। महानूर बाजी, आपके साथ इस चुड़ैल इस डायन के कमरे में। रज़िया महानूर की रहनुमाई करती हुई किसी दिल के साथ सोच रही थी। डायन झपट्टा मारकर खारी को ले उड़ी कमबख्त। वो जी भर कर सादिया को कोस रही थी। अच्छा, तो तुम पहले सर्कस में काम करते थे? साद ने अपने से अलग नशिस्त पर बैठे रिजवानुल हक को मुखातिब किया। जी, इसने सर हिलाया। क्या करते थे सर्कस में? जो जोकरी करता था और जगरी भी, इसने नीची आवाज़ में कहा। वाह, बड़े ट्रीट्स हैं ये तो। साद मुस्कुराया। मुझे सिखाओगे? आपको? इसने साद की तरफ यूँ देखा जैसे कह रहा हो मुझे इल्म है, आप मजाक कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल मुझे, साद ने सर हिलाकर यकीन दिलाते हुए कहा। मैं आउट ऑफ प्रैक्टिस हो चुका हूँ। इसका लहजा एकदम उदास हो गया। अरसा हुआ मैंने दोनों को छोड़ दिया। ओह, साद ने होश कुएरते हुए कहा। क्यों भाई, इतने मज़े के काम तो तुमने क्यों छोड़े? बस दिल नहीं लगता था इस काम में, इसलिए छोड़ दिया। कितने साल सर्कस में रहे? कितने ही साल, गिनती याद नहीं। रिजवानुल्लाह सामने देखता हुआ बोला। इतने साल एक काम करने के बाद इससे दिल उचाट हो गया। साद हंसा और हाथ रिजवानुल्लाह की तरफ बढ़ाया। तुम तो मेरे ही भाई निकले यार, हाथ मिलाओ। मैं भी बहुत गैर मुस्तकिल मिजाज हूँ। नहीं, मैं गैर मुस्तकिल मिजाज नहीं हूँ। रिजवान ने साद के बढ़े हुए हाथ को थामते हुए हिलाया। मेरा मामला कुछ और था, इसलिए मैंने सर्कस छोड़ा। अच्छा, साद ने इसके लहजे पर गौर करते हुए इसकी जानिब देखा। खैर,
जब कभी दोबारा प्रैक्टिस करने लगो तो बताना, मैं भी सीखूंगा। ठीक, वैसे तो शायद सारा को भी आते हों ये दोनों काम, सार ने याद करते हुए कहा। सारा भी पहले सर्कस में काम करती थी, इसे जानते हो? सार ने सारा की याद आने पर यूं ही रिजवान उल हक से पूछा। नहीं, इस नाम की किसी लड़की को तो मैं नहीं जानता। इसने सर हिलाया। अच्छा, मैंने सोचा शायद तुम भी वहीं कहीं जोकरी और जिगलरी करते थे, इसने लापरवाही से कहा और दूर से आते खारी को देखकर मुस्कुराने लगा। आओ भाई खारी, बहुत मुबारक हो दूल्हे मियाँ। खारी के करीब आने पर साद ने गर्मजोशी से इससे मिलते हुए कहा। दांत निकालता खारी साद को देखकर एकदम संजीदा हो गया। इतनी सी उम्र में मैदान मार लिया तुमने, हमें देखो अभी तक अकेले फिर रहे हैं। साद ने इसे संजीदा होते देखकर दोस्ताना माहौल बनाने की कोशिश की। खारी ने हल्का सा मुस्कुरा कर सर झुकाया और रिजवान की तरफ देखने लगा। साद साहब बहुत अच्छे बंदे हैं, इनके पास बैठकर ज़रा भी नहीं लगता कि इनके और हमारे स्टेटस में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। रिजवान ने मुस्कुरा कर खारी से कहा। खारी ने इस बात पर सर उठाकर साद की तरफ देखा जो वो मुस्कुरा रहा था। इतना हंगामा, इतना हजूम था तुम्हारी शादी पर कि मैं तुम्हें कुछ दे भी नहीं सका। इसने जेब में हाथ डालते हुए खारी से कहा। ना कोई तोहफा लाया, न सलामी दी। जेब से वॉलेट निकालते हुए बोला, फिर वॉलेट से 5,000 का नोट निकाल कर खारी की तरफ बढ़ाया। ये तुम्हारे और तुम्हारी दुल्हन दोनों के लिए है। नहीं जी, खारी ने साद के हाथ पर हाथ रखकर इसे रोकते हुए कहा। आप इधर आए हो, यही बड़ा तोहफा है। तकल्लुफ़ मत करो यार, ये एक बड़े भाई की तरफ से तोहफा है। साद ने खारी के तकल्लुफ़ाना अंदाज पर मुस्कुराते हुए कहा। आपने तोहफा ही देना है ना? खारी ने साद की तरफ देखते हुए कहा। इसका हाथ अभी भी साद के हाथ में था। साद ने इस बात में सर हिलाया। तो आप हम दोनों को, खारी ने अपने रिजवान की तरफ इशारा करते हुए कहा। वो गीत सुना दो। कौन सा गीत? साद ने चौंक कर खारी की तरफ देखा। वही, खारी ने इसे नज़रों में जिताते हुए कहा और बाएं कान पर बायां हाथ रखकर बोला। साद की तरफ लहराया और देखे बिना ही नमिया रावा इश्क दिया। रिजवानुल हक बड़े गौर से और दिलचस्पी से खारी की सदा को देख रहा था और साद दम बखुद खारी की आवाज़ सुन रहा था, जिसने एक लाइन सुनाने के बाद इसकी तरफ यूं देखा। कह रहा हो आप, आगे आप सुनाओ। लेकिन मुझे तो गाना नहीं आता यार, साद ने कुछ देर बाद नॉर्मल होते हुए कहा। इसके चेहरे पर ऐसा तासुर था जैसे खारी की कितनी जहानत को सराह रहा हो। अच्छा जी, नहीं आऊँगा। खारी ने जवाब में यूं देखा जैसे जता रहा हो मुझे बच्चा समझ रहे हो ना। साद ने मुंह से खट्टा की आवाज़ निकालते हुए कहा। मैं नूर बाजी नू पता है कि आप नू गाना आंदा है, खारी ने कहा और जेर लब मुस्कुराया। मैंने इससे तो कभी पूछा नहीं। साद शरारत से मुस्कुराया। इसे अपने और खारी के दरमियान मज़ाक का एक अजीब सा ताल्लुक़ बनता महसूस हो रहा था। चलो, मैं नूर बाजी नू नहीं बताते, आप गाना सुनाओ, मैं आप देख नाल गाता हूँ। खारी ने जैसे इससे कुछ लो वाली सौदेबाजी करते हुए कहा। हाँ हाँ हाँ, साद का जानदार कहका फ़ज़ा में उभरा। चलो तुम शुरू करो, मैं कोशिश करता हूँ। अभी लें, सारी सीधा होता हुआ बोला। फुलना दा नगो जिंदड़ी इश्क रुलाया रैंदा, इसने तान उड़ाई। ओखे पेंडे लम्मियां दी रावा इश्क दियाँ, दर्द जिगर तख्त सजावा इश्क दियाँ। कुछ देर बाद साद की आवाज़ फ़ज़ा में गूंज रही थी और खारी और रिजवान उल हक मबूहत होकर साद को सुन रहे थे। वलीमे की दुल्हन सादिया का बनाव सिंगार मुकम्मल हो चुका था। महानूर ने इसके मेकअप को फाइनल टच दिए और इससे ज़रा फासले पर हट कर खड़ी होकर इसका जायज़ा लेने लगी। अगर कोई कमी रह गई हो तो इसे पूरा कर लिया जाए। ज़बरदस्त भाई, तुम तो बहुत अट्रैक्टिव हो, बड़ा फोटोजेनिक चेहरा है तुम्हारा। अपने फ़ोन पर सादिया की तस्वीरें लेते हुए इसने कहा। सादिया महानूर से मेकअप करवाने के दौरान किसी और ही दुनिया में पहुंच चुकी थी। मैगज़ीन में छुपी मॉडर्न लड़कियों जैसी लड़की अपने नर्म और नाजुक हाथों से इसको संवार रही थी।
सादिया का अपना पस मंज़र भग से उड़कर कहीं दूर जा पड़ा था। वो कौन थी? इसके माँ बाप कौन थे? अब तक की उम्र इसने कहाँ और कैसे गुजारी थी? सब एकदम माजी बन चुका था, जिसे भुलाकर वो अपने पेशे नज़र मंज़र में मौजूद थी, जहाँ जिद्दत थी, खूबसूरती थी, आसाइश थी। जिद्दत, खूबसूरती, आराइश, ये अल्फाज भी मैगज़ीन में ही इसने पढ़े थे। वो जो सब पढ़ा था वो इसे हाथ लगा कर छू सकती थी, और इस इनकलाब का सर चश्मा, इसका सरताज इफ्तिखार अहमद उर्फ खारी था। खारी जिसे कुछ अरसा पहले इसने एक अनपढ़ सुदाई से इंसान का दर्जा देते हुए इस पर सिर्फ इस बात का रश्क किया था कि फार्म हाउस में रहता था। एक लम्हाती जुर्रत ने सादिया को फर्श से अर्श पर पहुंचाया था। इसने तंज करती और जताती हुई नज़रों से आपा राबिया को देखा, जो गुजरे कल से आज तक के अरसे में पहली बार इससे मिलने आई थी। उन्होंने इसके सर पर हाथ रखा और खामोशी से एक तरफ बैठ गई। ये रातों रात बूढ़ी क्यों लगने लगी हैं? फातिहाना नज़रों से इन्हें देखते हुए सादिया ने ज़रा की ज़रा सोचा। यूँ लगता है जैसे इनके जिस्म का सारा खून किसी ने निचोड़ लिया हो। इसका दिल लम्हा भर को कांपा और एक एहसास जुर्म इसकी महसूसात में उभरा, लेकिन अगले ही लम्हे वो अपनी नई दुनिया में मगन हो गई, जहाँ खुशियाँ और रौनकें थीं। आंटी, सुना है आपको दीन पर खासी दस्तरस हासिल है। मानो ने धुले और गीले हाथ टिश्यू पेपर से खुश्क किए और आपा राबिया के करीब बैठ गई। इसके इस बेतकल्लुफ़ाना अंदाज पर आपा राबिया ज़रा मजूब सी होकर कदरे सिमट गईं। नहीं बेटा, ऐसी तो कोई बात नहीं है, उन्होंने नीची आवाज़ में कहा। ताई साबरा और खारी दोनों ही बताते हैं कि दीन के बारे में आपका खासा इल्म है और आप दर्स भी देती हैं। खारी बेचारा तो अभी तक एक दो सिपारे ही ठीक तरह से पढ़ पाया है और इसी को बहुत समझता है, इसलिए कह रहा होगा। किसी ने इस बेचारे की दीनी तालीम की तरफ ध्यान नहीं दिया, इसलिए वो इस उम्र में भी इतना भी पढ़ लेने के इल्म जानता है, वरना बहुत छोटी उम्र में बच्चे नाज़रा कुरान मुकम्मिल कर चुके होते हैं। इतने में भी अपने बचपन ही कर चुकी हूँ, उन्होंने इनकसारी से जवाब दिया। अच्छा, मानूर मुस्कुराई। और ताई साबरा को भी गलत फहमी सी हुई होगी, वो तो महफिल में रात कराना चाह रही थी, आपकी सदारत में आपसे दर्स दिलवाना चाह रही थी। इनका बड़ापन है, आपा राबिया इसी अंदाज में बोली। मौलवी साहब की बीबी समझ कर सोचती हैं कि शायद मैं भी कोई बाइलम औरत हूँ, जबकि मेरे तो सारे ही सबक अधूरे हैं, नापख्ता और कच्चे। महानू ने गौर से इन्हें देखते हुए कहा। इसे आपा राबिया की शख्सियत में कोई इसरार वाली बात नज़र आ रही थी, मगर इसकी समझ में नहीं आ रहा था कि उसे क्या नाम दे। शुक्र है ये शादी ख़त्म हुई, एक दिन का कहकर आई थी। 3 दिन गुजर गए और मैं तो अब तक बुरी तरह फेडअप हो चुका हूँ इस हंगामे से, जिसमें हर किस्म का बंदा बस हुल्लड़ मचाने पर लगा हुआ है। सलमान ने उकताए हुए अंदाज में महानूर से कहा, जो नाखूनों पर क्यूटेक्स रिमूवर्स में भीगा रुई का फार रख कर इस पर चढ़ते रंग छुड़ाने में मसरूफ़ थी। लो, इतना तो मज़ा आया, इसने लापरवाही से कहा। तुम तो सख्त बोरिंग हो भई, मैं ऐसे मज़े से इसके बगैर ही भला हूँ, सलमान ने चिड़े हुए अंदाज में कहा। अच्छा भला मैं अगले रोज़ वापस जा रहा था, मम्मी का हुक्म आया माही के बगैर ना आना, इसे साथ लेकर ही आना। क्या था जब तुम बाद में आ जाती? हाँ, मैं बाद में जा सकती थी, साथ के साथ चली जाती वापस, तुम ख्वाह रुके, महानूर ने इसे चिढ़ाया। साथ के साथ? सलमान ने इसे देखा। वो तो फिलहाल वापस नहीं जा रहा, इसे इंकशाफ किया। क्या मतलब है तुम्हारा? महानूर चौंकी। वो क्यों नहीं जा रहा वापस? इसकी और चचा सरदार की खूब बन गई है। चचा रात वलीमे के बाद इससे कह रहे थे वो रुक जाए, वो खुद भी कुछ दिन के लिए फारिग है, मज़े से शतरंज खेलेंगे, घोड़े दौड़ाएंगे और फार्मिंग कराएंगे। चचा के पास जो ग्रामोफोन रिकॉर्डर हैं, इसका कलेक्शन भी दिखाना है इन्हें साथ को, और न जाने क्या क्या इवे दे रहे थे। वो भी शायद बड़ा फारिग आदमी है, खुशी से मान गया, लिहाजा वो फ़िलहाल वापस नहीं जा रहा। अच्छा, मानू ने इधर उधर देखते हुए कहा। इसका जहन तेज़ी से कुछ सोच रहा था। भाई, ये तो सलमान को बड़ी जल्दी मचा रहे हैं जाने की। मेरा ख्याल था आज की रात तुम दोनों मज़ीद ठहर जाते। दोपहर के वक्त जब वो फार्म हाउस के पिछले हिस्से में बनी संगमरमर की छोटी सी
बारादरी में रखे सफ़ेद संगी तख़त पर नीम दराज दरख्तों पर झूलते परिंदों को टिकटिकी बांधे देखने में मशगूल थी। सरदार चचा ने इधर आते हुए इसका ध्यान तोड़ा। वो इनको देखकर उठकर बैठ गई। इसकी ऑफिस से आज तीसरी छुट्टी थी। चाचा उसे तो वापस जाना ही है। आपको पता है ना, पहले ही कहाँ तक करके कोई नौकरी करता है। इसने कहा, हाँ ये भी है। इधर तुम्हारी मम्मी को कहीं परेशानी के बारे कुछ हो ना जाए। वो शरारतन हंसे। आपको पता ही है, वो मुस्कुराई। और तुम्हारा क्या दिल चाह रहा है, रहना है या जाना है, उन्होंने पूछा। मुझे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ना भी जाऊं तो कोई बात नहीं, इसने लापरवाह बनते हुए कहा। अच्छा वाकई? वो हैरान हुए। तुम्हारा फाइनल सेमेस्टर है? जी हाँ, मेरा तो बस पेपर ही सबमिट होना बाकी है, जब चाहे करा दूँ, इसने इन्हें इत्मीनान दिलाया, जबकि दिल में वो मम्मी के हाथों अपनी दुर्गत पर कांप रही थी। तो फिर सलमान क्यों तुम्हें भी वापस साथ ले जाने की जिद कर रहा है? मैं अभी इसको मना करता हूँ। हाँ तो और क्या, वो बसूरी, अब इतनी रौनक में किसका वापस जाने को दिल चाहता है? तुम फिक्र नहीं करो, मैं अभी से अकेले वापस भिजवाता हूँ। वो उठते हुए बोले, और वो उनके जाने के बाद गहरी सोच में पड़ गई। साहब वापस नहीं जा रहा। वो यहाँ शतरंज, राइडिंग, स्विमिंग, म्यूज़िक, गाल्फ और चचा सरदार की कंपनी के दरमियान मज़े से रहेगा। ये तस्वुर ही इतना मज़े का है कि मेरा वापस जाने पर कैसे दिल चाह सकता है। पढ़ाई, इसने सफ़ेद संगे फव्वारे के पैरों में मुसलसल गिरते पानी से जम जाने वाली इकाई पर नज़र जमाई। पढ़ाई तो उम्र भर की है। पास भी हमेशा वक्त पर होती रहूँगी। कुछ दिन पढ़ाई ना भी करूँगी तो क्या हो जाएगा? जो फेल हो जाते हैं, जिनके सेमेस्टर लेट हो जाते हैं, वो भी तो इंसान ही होते हैं। मैं भी तो इंसान ही हूँ ना, इसने जहन का बोझ हवा में उड़ाते हुए कहा, और दोबारा नीम दराज होकर दरख्तों के सरसराते पत्तों के दरमियान से गुजरती सूरज की रोशनी पर नजर जमा ली। धूप और छाँव का ये नरम गरम इम्तजाज इसके असाब पर गनूदगी सवार किए दे रहा था। दिल दिमाग पर हावी हो रहा था, या इश्क ने अक्ल को पछाड़ दिया था। इसका नीम गनूदगी में जाता जहन समझ नहीं पाया था।